are going to begin with this story, Indigo. We'll read it and I'll explain it to you. So main thing that you need to know about this story is actually this is an excerpt. Excerpt you can say is a part. ये एक part है जो उन्होंने book लिखी थी The Life of Mahatma Gandhi पर. उस book का ये एक part है. All right, which has been given to you as a story here. So let's begin with the story. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. So this story comes to us as a historical document also, because through this story we come to know about Mahatma Gandhi, and of course, as the story begins, उन्होंने बताया, because as a journalist he must have interviewed him, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने बताया महात्मा गांधी ने कि आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से ये हुआ कि मेरे अंदर ये इच्छा आई, अर्ज टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश. अर्ज हियर मींस प्लीड. ऑलराइट, द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश. कब पहली बार उन्होंने ये प्लीड किया कि ब्रिटिशर्स को यहां से चले जाना चाहिए? इट वॉज इन 1917. और ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था. He had gone to December 1916 annual convention. Annual convention is an yearly assembly. All right. Annual means yearly. साल में एक बार होने वाला. Convention is actually an assembly. Annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. ये एक्चुअली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी लखनऊ का ईयरली कन्वेंशन था, ईयरली असेंबली थी. There were 2,301 delegates and many visitors. Delegates means representatives. Delegates are representatives and many visitors. और ये बहुत बड़ी असेंबली थी. इसमें लगभग 2301 लोग डेलीगेट्स थे, representatives थे, और उनके साथ साथ बहुत सारे visitors भी थे. During the proceedings, Gandhi recounted a pleasant. During the proceedings, Gandhi recounted. A peasant came up to me, looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran, and I want you to come to my district. So, as there were so many people, and out of them, Gandhi recalls. Recounted means recalled, told. उन्होंने बताया. A peasant came up to me. Peasant is a farmer. A small farmer is called a peasant. एक छोटा सा किसान मेरे पास आया. Like any other peasant in India, जैसे कि भारत का कोई भी किसान लगता था. Poor and emaciated. Poor, गरीब, and emaciated. Emaciated means starving, जैसे भूखा वो किसान था. And said, और उसने आकर गांधी को बोला, I am राजकुमार शुक्ला. मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, मैं चंपारण से हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार हमारे डिस्ट्रिक्ट में आएं. गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस. गांधी ने पहले इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में कभी नहीं सुना था. It was in the foothills of the towering Himalayas. Towering, you understand, very high, like a tower. Himalayas, near the kingdom of Nepal. वो हिमालयाज की फुटहिल्स में था, उसके नीचे था, और नेपाल के राज के नेपाल के पास था. Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. अब जो एक एंशियंट अरेंजमेंट था, एंशियंट अरेंजमेंट मींस ओल्ड ट्रेडिशन, पुराने ट्रेडिशन के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से, ये जो चंपारण पेजेंट्स थे, जो चंपारण के किसान थे, दे वर शेयर क्रॉपर्स. शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं? जो फसल के हिस्से पे काम करते हैं. मतलब कि लैंड अगर किसी और का भी हो, लेकिन दे वर्क ऑन दैट लैंड, और उनको उस फसल का हिस्सा मिलता है. ओके, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड शेयर क्रॉपर्स. तो जो चंपारण के जो किसान थे, वो शेयर क्रॉपर्स की तरह से काम किया करते थे. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम. वो भी उनमें से एक था. ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट. वो इलिटरेट तो था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, बट रेजोल्यूट था. रेजोल्यूट मीन्स डिटर्मिन्ड, दृढ़ निश्चय वाला जो इंसान होता है ना, डिटर्मिन्ड था. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, speak to Gandhi. Now, what was his purpose to come to Gandhi actually? वो इस कांग्रेस सेशन में आया था कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए about the injustice of the landlord system. जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था, यानी जमींदारी प्रथा जो थी, उसकी शिकायत करने के लिए. किस बात की शिकायत? इनजस्टिस की, क्योंकि वहां अन्याय होता था.
उसकी शिकायत करने के लिए वो आया था और किसी ने उससे ये कह दिया, स्पीक टू गांधी। गांधी से बात करो। Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. गांधी ने बताया कि उनकी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट थी, एंगेजमेंट थी कानपुर में, और उनको और जगहों पर भी जाना था, है ना, इंडिया के और पार्ट्स में भी जाना था। शुक्ला accompanied him everywhere. शुक्ला हर जगह उनके साथ गया। Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. फिर गांधी वापस अहमदाबाद के पास अपने आश्रम में आ गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला ने जो है उनके आश्रम तक उनका पीछा किया। For weeks he never left Gandhi's side. कई हफ्तों तक उसने जो है गांधी की साइड छोड़ी ही नहीं, मतलब उनको फॉलो करता रहा। फिक्स अ डेट, ही बेग्ड, बहुत रिक्वेस्ट करने लगा, फिक्स अ डेट, आप प्लीज कोई डेट फिक्स करो, पक्की करो, है ना। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, tenacity you understand, परसिवियरेंस, डिटर्मिनेशन जिसको बोलते हैं, हाँ, तो उसकी परसिवियरेंस से बहुत इंप्रेस होकर और उसकी कहानी सुनकर गांधी ने कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच डेट, मुझे उस दिन जो है कैलकाटा जाना है, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, ठीक है, मुझे वहां मिलना और वहां से मुझे लेकर चलना अपने डिस्ट्रिक्ट में। मंथ्स पास्ट, महीने गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन द हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव्ड। जैसा गांधी ने बताया था, जहां पर बताया था कैलकाटा में, वहां पर वो पालथी मारकर बैठा हुआ था, हाँ, सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस, यू अंडरस्टैंड, पालथी मारकर बैठना जिसको कहते हैं, वो वहां पर ऑलरेडी बैठा हुआ था जैसा कि उसको कहा गया था। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और उसने तब तक गांधी का इंतजार किया जब तक वो फ्री हो गए। Then two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. फिर वो दोनों जो हैं पटना के लिए, बिहार में जो पटना है वहां के लिए एक ट्रेन में बैठ गए। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. वहां से शुक्ला जो है वो उनको एक लॉयर के घर में ले गए जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था। वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट और बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद जो है बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. लेकिन जो उनके नौकर थे वो शुक्ला को बहुत अच्छे से जानते थे। कैसे जानते थे? योमैन इज अ फार्मर, उस किसान के रूप में, who pestered their master, who pestered means kept annoying, जो बार बार पीछे लगा हुआ था, पीछे लगा रहता था उनके मास्टर के, उनके मालिक के, यानी कि राजेंद्र प्रसाद के, टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रोपर्स, इंडिगो शेयर क्रोपर्स को हेल्प करने के लिए। नाउ इंडिगो मीन्स नील, नील जिस जो कपड़े, व्हाइट कपड़े धोकर उसमें आप नील यूज करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड इंडिगो। तो ये सब जो थे इंडिगो शेयर क्रॉपर्स थे, और जो राजेंद्र प्रसाद के नौकर थे उनको पता था कि ये यहाँ अक्सर आता रहता है और ये हमारे मालिक के पीछे लगा हुआ है कि वो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स को हेल्प करें। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी, whom they took to be another peasant. तो उन्होंने उनको जो है जमीन पर रुकने के लिए अलाउ कर दिया, और क्योंकि वो उस किसान को जानते थे और उन्होंने सोचा कि गांधी भी कोई और किसान ही है। Alright, but Gandhi was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source. लेकिन गांधी को अलाउ नहीं किया गया कि वो कुएं से पानी निकाल सके। क्यों? क्योंकि अगर उसकी बाल्टी का कुछ पानी छलक कर कुएं में गिर गया तो वो पूरे सोर्स को, उस एंटायर सोर्स मतलब उस पूरे कुएं को पोल्यूट कर देगा। How did they know that he was not an untouchable? उनको क्या पता कि गांधी अनटचेबल नहीं है? वो क्योंकि राजकुमार शुक्ला के साथ था और उन्होंने सोचा ये तो कोई छोटे मोटे से किसान है, पता नहीं कौन सी जाति के हैं, और इसलिए उन्होंने उनको कुएं से पानी तक भी निकालने के लिए, पीने के लिए अलाउ नहीं किया। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। गांधी ने ये डिसाइड किया कि पहले हम मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वॉज एन रूट टू चंपारण। एन रूट मीन्स ऑन द वे टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस दैट शुक्ला was capable of imparting means giving, जिससे कि वो और इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता कर सके, ले सके उन कंडीशंस, उन परिस्थितियों के बारे में जो कि शुक्ला ने उनको बताई थी। Alright, so he wanted more information, complete information about that, so he thought of going to Muzaffarpur.
He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shanti Niketan school. उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने मुजफ्फरपुर में आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर जो थे जेबी कृपलानी, उनको उन्होंने एक्चुअली गांधी उनको शांति निकेतन, टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे, तो उन्होंने उनको एक टेलीग्राम भेज दिया था. द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917. 15 अप्रैल 1917 की आधी रात को उनकी ट्रेन वहां पहुंची. कृपलानी was waiting at the station with a large body of students. कृपलानी ऑलरेडी गांधी का वहां पर वेट कर रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. गांधी 2 दिन तक वहां पर एक प्रोफेसर मलकानी थे जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, उनके घर पर रुके. It was an extraordinary thing in those days, गांधी commented. गांधी ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि उन दिनों में ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज थी, बहुत ही अलग सी बात थी. फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर वो मेरे जैसे इंसान को हार्बर मींस प्रोटेक्ट कर रहा है ना, उसने मेरे को शरण दी अपने घर में, मुझे वहां रखा. It was something extraordinary to be done. Why? Because if you are a government official, then you were not supposed to help freedom fighters like Gandhi. All right, but he still did that. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. जो छोटी लोकेलिटीज थी वहां पर जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, वो डरते थे अगर वो इन जो एडवोकेट्स ऑफ होम रूल थे, जो स्वराज की बात करते थे, स्वराज की जो बात करते थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको सिंपैथी दिखाने से लोग डरा करते थे. उस टाइम पे किसी तरह से उनकी हेल्प नहीं किया करते थे. The news of Gandhi's advent means arrival, and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. अब ये जो खबर थी गांधी के वहां पर आने की और वो किस मिशन पे निकला है, वो बहुत जल्दी से फैल गई पूरे मुजफ्फरपुर में और चंपारण तक. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot. चंपारण से वो जो किसान थे, जो sharecroppers थे, वो पैदल चलकर आने लगे. And by conveyance to see their champion. कोई पैदल चलकर, कोई कन्वेंस लेकर, कैसे भी करके बहुत सारे जो किसान थे वो गांधी को मिलने आने लगे. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम. मुजफ्फरपुर लॉयर्स जो थे उन्होंने भी गांधी को बुलाया उनको बताने के लिए. They frequently represented peasant groups in court. वो जो है कोर्ट में उन्होंने काफी मतलब बार बार जो है फ्रीक्वेंटली मतलब यूजुअली ये जो किसानों के ग्रुप थे जिनको की प्रॉब्लम थी इस इनजस्टिस से, उनके केस को उन्होंने कई बार जो है कोर्ट में प्रेजेंट किया था. They told him about their cases and reported the size of their fee. उन्होंने बताया कि उनके जो केसेस हैं मतलब क्या प्रॉब्लम है, किस तरह के केसेस वो लड़ रहे थे, और अपने मुकदमों की जो फीस थी उसके बारे में भी उन्होंने बताया. गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. Chided means scolded. गांधी ने बहुत बुरी तरह से डांटा उन लॉयर्स को, उन वकीलों को, इतनी बड़ी बड़ी फीस लेने के लिए इन बेचारे किसानों से. He said, उन्होंने कहा, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. मुझे अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब हमें इन लॉ कोर्ट्स में जाना, इन अदालतों में, कानून की अदालतों में जाना बंद कर देना चाहिए. Taking such cases to the courts does little good, क्योंकि इस तरह के केसेस जो हैं कोर्ट में ले जाने से कोई फायदा नहीं होता. Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. जहां पर किसानों को इतनी बुरी तरह से कुचला जाता है, सप्रेस किया जाता है, crushed means suppressed and fear-stricken, और उनको इतना डरा कर रखा जाता है, वहां कोई फायदा नहीं है लॉ कोर्ट्स में जाने का. The real relief for them is to be free from fear. उनके लिए सबसे बड़ा रिलीफ ये होगा अगर उनको डर से मुक्ति मिल जाए, if they are free from fear. Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. Now you see here we are told what actually the problem was. जो चंपारण लैंड जो था, चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो था, उसकी जो अधिकतर लैंड थी, कैसी लैंड? एरेबल लैंड. एरेबल मींस द लैंड विच इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जिस पर फसल उगाई जा सकती है. वो जो अधिकतर वो जो फसल उगाने लायक जो वो लैंड थी, वो बड़ी बड़ी जागीरों में बांट दी गई थी.
ऑलराइट, एस्टेट्स मीन जागीर जिसको बोलते हैं, उनको बड़ी बड़ी जागीरों में बांट दिया गया था, जिन पर इंग्लिशमैन अंग्रेजों का अधिकार था, एंड इंडियन टेनेंट्स यूज्ड टू वर्क देयर, इंडियन फार्मर्स यूज्ड टू वर्क देयर एज टेनेंट्स, और जो भारतीय लोग थे वो वहां पर किराएदारों की तरह काम करते थे, टेनेंट्स की तरह काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और जो उनकी मेन फसल थी, जो मेन सबसे बड़ी फसल थी वहां पर, वो नील की खेती हुआ करती थी, इंडिगो की खेती हुआ करती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. अब ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, वो क्या करते थे, वो किसानों को मजबूर करते थे कि वो अपनी जमीन का 3/20 यानी कि एटलीस्ट 15% पे वो नील की खेती करेंगे, और वो जो नील वो उगाएंगे वो पूरा रेंट के तौर पर इन जमींदारों को दे देंगे। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये एक उन्होंने एक लंबे टाइम के कॉन्ट्रैक्ट इन किसानों के साथ बना लिए थे इस चीज को लेकर। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. अब एकदम से मतलब प्रेजेंटली जस्ट देन तभी ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, इनको ये पता चला कि जर्मनी ने जो है एक सिंथेटिक इंडिगो बनाने का तरीका सीख लिया है। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. और अब देखो वो क्या कर रहे थे, अब वो जो इन्होंने इन शेयर क्रॉपर्स के साथ जो अग्रीमेंट किया था, तो इन बेचारों से उन्होंने जो 15% का जो बंधन था, इससे मुक्ति कर देने के लिए इनको, उसके लिए भी वो उनसे कॉम्पनसेशन पे करने के लिए बोल रहे थे। ऑलराइट, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज irksome टू द peasants. अब ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था, ये बहुत irksome मींस इरिटेटिंग था इन पेजेंट्स के लिए, ये इनके लिए बहुत परेशान करने वाला था। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और इसलिए बहुतों ने इच्छा से जो है इस एग्रीमेंट पे साइन कर दिया था। दोज हु रेजिस्टेड एंगेज लॉयर्स, लेकिन जिन्होंने विरोध किया उन्होंने वकीलों को रख लिया, है ना, जिन्होंने रेजिस्ट किया इसके खिलाफ उन्होंने वकीलों को रख लिया। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, ठग्स मींस रफियंस, बदमाश जिनको बोलते हैं, इन लैंडलॉर्ड्स ने जो है कुछ बदमाशों को हायर कर लिया। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. अब ये जो सिंथेटिक इंडिगो वाली जो खबर थी, वो उन बेचारे किसानों को मिली जिन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने कहा अब हमारा पैसा हमें वापस मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब तो उनका उगाया हुआ इंडिगो वहां पर यूज नहीं होगा ना, अब तो उनको, तो दैट्स व्हाई दे वांटेड द मनी बैक। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी पॉइंट पर गांधी चंपारण में पहुंच गए। He began by trying to get the facts. उन्होंने शुरुआत की सबसे पहले फैक्ट्स पता करने में, कि मतलब पूरी जानकारी लेने में, राइट। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, पहले उन्होंने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मुलाकात की। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, लेकिन सेक्रेटरी ने उनको कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, ये कह के क्योंकि वो एक आउटसाइडर है। Next, Gandhi called on the British official commissioner to the Tirhut division in which the Champaran district lay. उसके बाद गांधी, हालांकि गांधी ने ये कहा कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है, गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन मींस विजिटेड, ही विजिटेड द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुट डिवीजन, जिसमें कि चंपारण पड़ता था, है ना, तो वहां के कमिश्नर से मिले। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, गांधी ने बताया, द कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुट। जो कमिश्नर था, पहले उसने बुली किया, उनको थ्रेटन किया, हाँ, डराया धमकाया, और ये सलाह दी दैट फोर्थविथ मींस इमीडिएटली टू लीव तिरहुट, कि वो तुरंत जो है तिरहुट छोड़कर चले जाएं। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी ने लेकिन वहां छोड़ा नहीं। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। उसके बजाय वो कहाँ चले गए? मोतिहारी चले गए, जो कि चंपारण की कैपिटल है। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, बहुत सारे वकीलों ने भी उनको मतलब उनके साथ वो वहां पर गए।
At the railway station, a vast multitude is crowd, greeted Gandhi. जब गांधी रेलवे स्टेशन पहुंचे मोतिहारी के, वहां पर बहुत बड़ी भीड़ ने उनका स्वागत किया. He went to a house and using it as headquarters, continued his investigations. वहां वो एक घर में गए और उस घर को उन्होंने अपने हेडक्वार्टर की तरह यूज किया और वहां से उन्होंने अपनी जांच पड़ताल, जो भी इन्वेस्टिगेशन थी इस मैटर को लेके, वो शुरू की. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. वहां उनको खबर मिली कि एक जो किसान है उसको मेल ट्रीट किया गया है, मतलब कि उसके साथ इल ट्रीट किया गया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है एक पास के गांव में. गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी. गांधी ने निश्चय निर्णय लिया कि वो जाएंगे और देखेंगे. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट. अगली सुबह वो एक हाथी पर हाथी की सवारी करके वहां जाने के लिए उन्होंने अपनी जर्नी शुरू कर दी. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him. अभी वो ज्यादा दूर गए भी नहीं थे कि जबकि पुलिस सुपरिटेंडेंट के एक खबरी था, वो उसने उनको ओवरटेक किया and ordered him to return to town. और उनको ये आदेश दिया that he should return to his town in his carriage, कि वो वापस शहर में चले जाएं अपने कैरेज पे. गांधी complied, लेकिन गांधी ने कंप्लाई किया. कंप्लाई मींस ओबे किया इस बात को. गांधी मान गए. The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. जो मैसेंजर था उसने वापस गांधी को घर पे पहुंचा दिया और वहां पर उनको एक ऑफिशियल नोटिस भेजा गया कि वो तुरंत चंपारण को छोड़कर चले जाएं. Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. अब वो जो उसकी रसीद थी ना नोटिस की, उन्होंने वो साइन की और उस पे ये लिख दिया that he would disobey the order, मतलब कि वो इस ऑर्डर को खारिज करते हैं, वो उसको नहीं मानेंगे. In consequence, Gandhi received a summons to appear in court the next day. और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि गांधी को एक समन आया, कॉल आया कि उनको अगले दिन कोर्ट में पेश होना है. All night Gandhi remained awake. पूरी रात गांधी जगे रहे. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. वहां से उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया कि वो बिहार आए अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल, मतलब कि कुछ जो होते ना हैविंग प्रभावशाली जो लोग होते हैं, उनको लोगों को लेकर वो बिहार आए. He sent instructions to the ashram. उन्होंने अपने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस भेज दी. He wired a full report to the Viceroy. उन्होंने Viceroy को पूरी रिपोर्ट वायर की. Morning found the town of Motihari black with peasants. जब सुबह हुई तो पूरा मोतिहारी जो था, जो गांव था, जो कस्बा था, वो पूरा किसानों से भरा हुआ था. They did not know Gandhi's record in South Africa. उनको नहीं पता था गांधी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया है. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. उन्होंने सिर्फ इतना सुना था कि एक महात्मा है जो उनको मदद करना चाहता है और जो अथॉरिटीज हैं वो उसको परेशान कर रही हैं. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. उनका ये जो स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन था, जो अचानक से जो ये इन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट किया, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब जो विरोध किया, इतने सारे हजारों की तादाद में एक साथ वो कोर्ट रूम पे इकट्ठे होकर जो उन्होंने प्रदर्शन किया, जो डेमोन्स्ट्रेशन किया, ये शुरुआत थी उनकी लिबरेशन की, उनकी फ्रीडम की फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, कि ब्रिटिश के डर से अब वो मुक्त होने की उनकी शुरुआत हो गई थी. The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. जो officials थे उनको तो ये लग रहा था कि उनके अंदर इतनी ताकत ही नहीं थी कि बिना गांधी के कॉपरेशन के वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे. He helped them regulate the crowd. फिर गांधी ने उनकी मदद की उस क्राउड को शांत करने में, रेगुलेट करने में. Alright. He was polite and friendly. बहुत polite थे, friendly थे. He was giving them concrete proof that their might means power hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. और वो इस बात का प्रूफ दे रहे थे, कॉन्क्रीट प्रूफ, ठोस प्रमाण दे रहे थे इस बात का, that their might, their power, hitherto means so far, dreaded and unquestioned. Dreaded means feared and unquestioned, without doubt. कि उनकी जो ताकत है, ब्रिटिशर्स की जो ताकत है, जिसको कि जो कि अब तक जिससे डरा जाता था, अब तक जिसको क्वेश्चन नहीं किया जाता था, जिस पे कोई डाउट नहीं होता था, इट कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस.
लेकिन उस पावर को आज अब चैलेंज किया जा सकता था इंडियंस के द्वारा, इस बात का उन्होंने प्रूफ दे दिया था। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, बैफल्ड यू अंडरस्टैंड, बिविल्डर्ड, कंफ्यूज्ड। गवर्नमेंट जो थी वो घबरा गई, दे वर कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज हो गए। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। जो प्रोसिक्यूटर था उसने जज को रिक्वेस्ट किया कि इस ट्रायल को पोस्टपोन कर दीजिए। Apparently the authorities wish to consult their superiors, लेकिन जो अथॉरिटीज थी उन्होंने कहा कि हम अपने सुपीरियर्स को कंसल्ट करेंगे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, लेकिन गांधी ने इस डिले का विरोध किया। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने प्लीडिंग गिल्टी मींस कन्फेस्ड क्राइम, जिसमें ही वाज कन्फेसिंग क्राइम। ही वाज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट, इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. और वहां उन्होंने क्लियर कहा, जो कोर्ट था उसमें उन्होंने कहा कि वो उलझे हुए हैं अपने ड्यूटीज में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। वो अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज यानी कि स्ट्रगल ऑफ ड्यूटीज में उलझे हुए हैं। क्यों? बिकॉज ऑन वन हैंड, एक तरफ ही डजंट वांट टू सेट अ बैड एग्जांपल टू अ लॉ ब्रेकर, एज अ लॉ ब्रेकर, क्योंकि एक तरफ तो वो ये कोई गलत एग्जांपल नहीं सेट करना चाहते कि वो कानून तोड़ने वाले हैं, बट ऑन द अदर हैंड ही ऑन द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, इंसानियत के नाते और अपने देश को सर्व करने के नाते ही वॉन्टेड टू हेल्प देम, वो उनकी मदद भी करना चाहते हैं और जिसके लिए वो वहां पर आए थे। ऑलराइट, ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। उन्होंने उस ऑर्डर को, मतलब जो उनको वहां से जाने का जो ऑर्डर दिया गया था उसको उन्होंने डिसरिगार्ड किया, नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस। और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो इस आज्ञा का उल्लंघन किया, उस ऑर्डर का उल्लंघन किया, वो इसलिए नहीं कि वो जो लॉफुल अथॉरिटी थी उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, उसका कारण ये नहीं था, बल्कि वो उससे भी बड़ी जो लॉ है, हाँ हायर अथॉरिटी है, जो उससे बड़ा लॉ है, दैट इज द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, आपकी अंतरात्मा की आवाज, उसका जो कानून है उसको वो बहुत ओबे करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस ऑर्डर को डिसरिगार्ड किया। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और उसने कहा, गांधी ने उस टाइम बोला कि आपको जो भी पेनल्टी मुझसे लेनी है वो आप ले लीजिए। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. जो मजिस्ट्रेट थे, जो जज थे, उन्होंने कहा कि वो 2 घंटे बाद फैसला सुनाएंगे और उस 2 घंटे के लिए यानी कि 120 मिनट्स के लिए गांधी को बेल दे दी गई। गांधी रिफ्यूज्ड, लेकिन गांधी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, तो बिना बेल के गांधी को रिलीज करना पड़ा। When the court reconvened, जब कोर्ट वापस आई वहां पर, when it started the proceedings again, जब फिर से वो रिकन्वेंड हुई, मींस रिज्यूम हुई, रिज्यूम्ड, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। तब जज ने कहा कि जो जजमेंट है वो अभी कुछ दिनों तक नहीं दिया जाएगा। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, लेकिन तब तक उन्होंने गांधी को अलाउ कर दिया कि वो फ्री होकर वहां पर रह सकते हैं। ऑलराइट, So, Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Mazharul Haq, and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. अब बिहार से बहुत बड़े बड़े लॉयर्स जो थे, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक, ये सब जो हैं बिहार से वहां पर आ गए। दे कन्फरेड विद गांधी, और उन्होंने कन्फरेड मीन्स टॉक्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी से बातचीत की। What would they do if he was sentenced to prison? Gandhi asked. गांधी ने पूछा कि अगर उसको जेल हो गई तो वो क्या करेंगे? Why? The senior lawyer replied, they had come to advise and help him. जो सीनियर लॉयर था उन्होंने जवाब दिया कि वो यहाँ पर उनको एडवाइस करने और हेल्प करने आए हैं। If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. लेकिन अगर वो जेल चले गए तब तो कोई भी वहां एडवाइस करने के लिए नहीं होगा जिसे सलाह दी जाए, और वो घर चले जाएंगे। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी demanded. फिर गांधी ने उनसे पूछा, लेकिन ये जो sharecroppers, ये जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, इसका क्या? The lawyers withdrew to consult. लेकिन जो lawyers थे वो आपस की सलाह के लिए वकील अलग चले गए। Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultations. राजेंद्र प्रसाद ने उनकी जो आपसी सलाह मशवरा था उसको रिकॉर्ड किया है, मतलब उन्होंने उसके बारे में लिखा है। हाँ,
They thought among themselves, उन सब ने आपस में सोचा that Gandhi was totally a stranger, कि गांधी तो एक अजनबी है, and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. और फिर भी वो एक अजनबी है, एक आउटसाइडर है जो यहाँ के लोगों को जानता नहीं है, और लेकिन फिर भी यहाँ के किसानों की मदद करने के लिए वो जेल तक जाने को तैयार है. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts, but also those who claimed to have served these peasants, should go home, it would be shameful desertion. और वो खुद वो वकील, वो लोग जो कि ना कि सिर्फ वहीं के डिस्ट्रिक्ट्स को बिलोंग करते हैं, वहीं आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, बल्कि उन्होंने इन किसानों के केसेस को पहले भी लड़ा है, उनको सर्व किया है, अगर वो ऐसे में घर चले जाएंगे, it will be a shameful desertion. Desertion, you understand, abandonment, भगोड़ापन जिसको बोलते हैं, ये तो बहुत ही shameful होगा. They accordingly went back to Gandhi. फिर वो वापस गांधी के पास गए and told him, और उनको बोला, they were ready to follow him into jail. और फिर वो वापस गांधी के पास गए, उन्होंने कहा कि अगर गांधी जेल जाते हैं तो वो भी उनके साथ पीछे पीछे जेल चले जाएंगे. The battle of Champaran is won, he exclaimed. और तब गांधी ने कहा, अब चंपारण की जो ये लड़ाई है ये जीत ली गई है. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. और फिर उन्होंने क्या किया कि एक पेपर लिया और उसमें उन्होंने अलग अलग ग्रुप बनाए, ऑलराइट, मतलब अलग अलग ग्रुप पेयर्स में बनाए, और उन पेयर्स में उन्होंने ये डिसाइड किया, जो पूरे ग्रुप्स थे उनको बांट दिया, और उसमें वो ऑर्डर लिख दिया जिसके अनुसार जो हर पेयर था उसको गिरफ्तारी देनी थी. ओके, दे हैड टू गो फॉर कोर्ट अरेस्ट. Several days later, कुछ दिनों बाद, गांधी received a written communication from the magistrate. गांधी को एक written communication मिला, letter मिला magistrate की तरफ से, informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. उनको वो दिया कि एक लिखित संदेश मिला कि जो उस प्रदेश के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने इस केस को खारिज करने का ऑर्डर दिया है. Civil disobedience had triumphed the first time in modern India. और पहली बार जो सिविल डिसोबीडियंस थी, सिविल डिसोबीडियंस मतलब जो सभी ने अवज्ञा कहते हैं, कि जब कोई रूल आया, कोई ऑर्डर आया गवर्नमेंट का और उसको सबने मिलकर, मतलब जो पब्लिक है उसने खारिज कर दिया, उसने डिसोबे करने का डिसाइड कर लिया, पहली बार ये मॉडर्न इंडिया में हुआ था. Gandhi and the lawyers now proceeded to court to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmer. अब उसके बाद जो थे गांधी और वकील जो थे, अब दूर दूर इलाकों से किसानों की शिकायतों के बारे में जांच पड़ताल करने लगे. Dispositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidences. उनके जो डिस्पोजिशंस मींस स्टेटमेंट्स, किसानों के जो स्टेटमेंट्स थे, लगभग 10,000 किसानों के जो स्टेटमेंट्स थे, उन सबको लिखा गया, ऑलराइट, और नोट्स बनाए गए उनके एविडेंस के रूप में, मतलब कि प्रूफ के रूप में. Documents were collected, documents collect किए गए. The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protests of the landlords. पूरा जो एरिया था, throbbed means beat, धड़कना जिसको कहते हैं, पूरा जो एरिया था उसमें यही सब चल रहा था कि किस तरह से जो इन्वेस्टिगेटर्स एक्टिविटी कर रहे थे, मतलब किस तरह से बयान इकट्ठे कर रहे हैं, किसानों की शिकायतें लिख रहे हैं, एंड द वेहमेंट मींस लाउड प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जमींदार उसको जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे. इन जून गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर. जून में गांधी को सर एडवर्ड गेट, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने बुलाया. Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. लेकिन वहां जाने से पहले उन्होंने फिर वो जो उनके मेन साथी थे, लीडिंग एसोसिएट थे, जो उनके प्रमुख साथी थे, उनसे मिले और उनको किस अपना प्लान बताया कि अगर वो वापस नहीं आते हैं, मतलब मान लीजिए वहीं से उनको जेल में डाल दिया गया, तो किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस की जाएगी. गांधी had 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation. गांधी के 4 protracted means long interview हुए, लेफ्टिनेंट के साथ उनके 4 इंटरव्यू हुए,
और जिसके फलस्वरूप एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी वाज अपॉइंटेड, एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट की गई जिसमें कि इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशन पर काम करना था जिनको। Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of several months. Sorry, Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months. गांधी जो है चंपारण में शुरू में बिना किसी इंटरप्शन के 7 महीने तक वहां रहे, एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और उसके बाद भी वो छोटी छोटी विजिट्स के लिए वहां पर जाते रहते थे. द विजिट undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. ये जो छोटी छोटी जो मतलब पहले तो वो 7 महीने तक लगातार वहां रहे और उसके बाद छोटी छोटी विजिट वहां करते थे, और ये जो विजिट्स थी जो एक इलिटरेट किसान की विनती पर बहुत हल्के ढंग से इस उम्मीद से की गई थी कि शायद इसमें कुछ दिन लगेंगे, लेकिन इसमें गांधी की जिंदगी का पूरा 1 साल लग गया. The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. जो ऑफिशियल इंक्वायरी थी, जो सरकारी जांच पड़ताल थी, वो एक मतलब जो ये प्लांटर्स थे, जो खेतों के अंग्रेज मालिक थे या जो उनके लैंडलॉर्ड जो जमींदार थे, उनके खिलाफ पहाड़ जैसे मजबूत जो एविडेंस थे वो इकट्ठे किए गए. ऑलराइट, और जब उन्होंने देखा कि भाई इनके अगेंस्ट तो बहुत सारी शिकायतें हैं एंड दे हैड प्रूफ्स आल्सो, तो फिर किसानों को रिफंड करने का मतलब उनका पैसा वापस करने का फैसला दे दिया गया. बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी. लेकिन फिर उन्होंने गांधी से पूछा कि हमें कितना पे करना है उनको. They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. उन्होंने सोचा था कि गांधी जो है पूरा पैसा कहेगा जो भी उन्होंने इलीगली मतलब कि अनलॉफुल तरीके से या फिर डिसीटफुली धोखे से बेईमानी से, एक्सटॉर्टेड मींस वसूल किया था उनसे, विड्रॉ किया था, निकाला था. उन्होंने सोचा कि शायद वो कहेगा कि पूरा पैसा जो है उनका वापस किया जाए. He asked only 50%, लेकिन उसने सिर्फ 50% मांगा. There he seemed adamant, writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. और ये बात जो है ये भी रिकॉर्डेड है, ये बात J.Z. Hodge ने लिखी है जो कि वहां पर इस पूरे चंपारण के जो ये एपिसोड था उसको बहुत नजदीकी से देख रहे थे, है ना. और उन्होंने सिर्फ आधा मांगा और इस पे वो बहुत एडमेंट थे, अडिक्ट थे, जिद में थे वो. Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. And to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. और ये सोचकर कि शायद वो डिगे रहेंगे, जमींदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने 25% की सीमा तक लौटाने का प्रस्ताव दिया. और हैरानी तब हुई जब मिस्टर गांधी ने उनकी बात मान ली और इस तरह से जो उनका जो डेडलॉक था, जो गतिरोध था, वो दूर हो गया. दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन. और ये जो सेटलमेंट यानी कि अग्रीमेंट था, इसको अडॉप्टेड मींस एक्सेप्टेड यूनानिमसली, बिना किसी विरोध के सबने एक साथ जो है कमीशन जो था उसने मान लिया था. गांधी explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. तब गांधी ने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर पैसा लौटाना, पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बजाय इसके मतलब कि कितना पैसा मिल रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बजाय इसके कि कुछ तो चलो पैसा भी मिल रहा है और उनकी जो प्रेस्टीज थी वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से उनको सरेंडर करनी पड़ी. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Now the peasants saw that he had rights and defenders. He learned courage. और तब गांधी का ये मानना था कि इस तरह से जहां तक किसानों का सवाल था, जमींदारों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वो खुद कानून के ऊपर कोई स्वामी हो. लेकिन अब किसानों को पता चला कि उनके अपने अधिकार हैं, उनके अधिकारों के डिफेंडर्स भी हैं, उनके रक्षक भी हैं, एंड ही लर्न्ड करेज. और अब जो किसान था अब उसके अंदर हिम्मत आ गई थी. ऑलराइट,
इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, और जो इवेंट्स हुए हैं उसके बाद में जो घटनाएं हुई हैं उन्होंने गांधी की स्थिति को बिल्कुल जस्टिफाई कर दिया. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. और कुछ ही सालों में जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वहां पर, जो अंग्रेज जो वहां पर जमीन जिन्होंने हथियार रखी थी, दे अबैंडन द स्टेट. उन्होंने जो एस्टेट्स थी, उन्होंने जो वो जागीरें थी, उनको छोड़ दिया. ऑलराइट, और वो वापस पेजेंट्स के पास, यानी कि रिवर्टेड मींस वेंट बैक टू द पेजेंट्स, टू द फार्मर्स, वापस किसानों को मिल गई. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और फिर वो जो नील की खेती थी ना, वो भी गायब हो गई, क्योंकि वो क्यों की जाती थी, उनको रेंट के तौर पे देने के लिए, वो भी खत्म हो गई. Gandhi never contented himself with large political or economic solutions. गांधी ने कभी भी, he never satisfied himself with large political or economic solutions. वो बहुत बड़े political या इकोनॉमिक यानी कि पैसे से रिलेटेड सॉल्यूशंस में से वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते थे. ये उनका कभी भी मोटिव नहीं था. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it completely. उन्होंने देखा था कि चंपारण के गांव में जो कल्चरल, जो सांस्कृतिक और सोशल बैकवर्डनेस है, जो पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक पिछड़ापन, वो उन्होंने देखा था और वो उसके लिए कुछ करना चाहते थे. Alright, he appealed for teachers, Mahadev Desai and Narhari Parikh, two young men who had just joined Gandhi as disciples. Disciples means followers, and their wives volunteered for the work. और फिर उन्होंने अपील की, अध्यापकों के लिए अपील की, उन्होंने टीचर्स के लिए अपील की. दो यंगस्टर्स थे, महादेव देसाई, नरहरि पाठक, और जो गांधी के फॉलोअर्स बने थे, उनकी पत्नियां, वो सब इस सब के लिए इच्छा से तैयार हो गए. ऑलराइट, बिकॉज पीपल वर सपोज टू बी एजुकेटेड देयर, उनको पढ़ाने की जरूरत थी, सो दैट दे कैन नो अबाउट देयर राइट्स एंड देयर ड्यूटीज एज वेल. Several more came from Bombay, Pune and other district and other distant parts of the world. और भी बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग वहां पर आ गए अपनी इच्छा से काम करने के लिए, बॉम्बे से, पूना से, और भी दूर दूर से. Devdas, Gandhi's youngest son, arrived from the ashram and so did Mrs. Gandhi. देवदास जो गांधी का सबसे छोटा बेटा था, और मिसेस गांधी भी वहां पर पहुंच गए. प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस. 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए. Kasturba taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. जो कस्तूरबा गांधी थी, उन्होंने आश्रम रूल्स वहां पर सिखाए कि किस तरह से अपनी हाइजीन का, क्लेanलीनेस का, सैनिटेशन का ध्यान रखना है. जो कम्युनिटी सैनिटेशन है, सामाजिक स्वास्थ्य है, उसका किस तरह से ध्यान रखना है. हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल. वहां की जो हेल्थ कंडीशंस थी बहुत ही बुरी थी. गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months. गांधी डॉक्टर भी लेकर आए जिसने की अपनी इच्छा से वहां पर 6 महीने तक सेवा की. 3 medicines were available. 3 दवाइयां वहां पर अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, क्यूनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. Anybody with skin eruptions received ointment plus castor oil. तो ये 3 दवाइयां वहां पर थी. किसी की जीभ में गंदी होती थी तो उसको कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था. किसी को मलेरिया बुखार था तो कैस्टर और क्यूनिन मिलाकर दे देते थे. फोड़े फुंसी हैं, किसी को कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, स्किन इरप्शंस, जो स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसको कोई ऑइंटमेंट और कैस्टर ऑयल के साथ दे दिया जाता था. गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स. गांधी ने यह भी देखा कि वहां की औरतें किस तरह से गंदे कपड़े पहनती हैं. ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट. उन्होंने कस्तूरबा बाई को कहा कि उनसे बात करें. वन वुमन टुक कस्तूरबा बाई इनटू हर हट एंड सेड. एक औरत उनको अपनी झोपड़ी में ले गई और कहा, लुक, देयर इज नो बॉक्स, नो कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स. हमारे पास ना तो कोई बॉक्स है, ना कोई अलमारी है. द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव. जो साड़ी मैं पहन रही हूँ, ये अकेली एक ही साड़ी मेरे पास है. During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. अपने इतने लंबे स्टे में, चंपारण में जो इतने लंबे समय तक गांधी रहे, वो लेकिन इतनी दूर से भी अपने आश्रम पर ध्यान रखते थे. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. वो regular instructions भेजते रहते थे चिट्ठी के द्वारा, और जो फाइनेंशियल अकाउंट्स थे उनके लिए भी पूछते रहते थे. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. यहाँ तक कि एक बार उन्होंने रेजिडेंट्स को, जो वहां के रहने वाले थे, उनको ये भी लिखा कि जो
लेटरिन के जो ट्रेंचेस हैं, जो उनके गड्ढे हैं, वो पुराने वाले जो हैं वो भर चुके हैं, तो इसलिए अब नए खुदने चाहिए, नहीं तो स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। ये जो चंपारण एपिसोड था, ये एक टर्निंग पॉइंट था गांधी की लाइफ में। What I did, he explained, was a very ordinary thing. शायद जो मैंने किया वो बहुत ही सिंपल चीज थी, बहुत ऑर्डिनरी थी. I declared that the British could not order me about in my own country. मैंने पहली बार ये डिक्लेयर कर दिया था कि ब्रिटिश मुझे नहीं बताएंगे कि मैं अपनी कंट्री में क्या करूं, मेरी कंट्री के लिए वो मुझे ऑर्डर नहीं करेंगे. बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस. लेकिन ये जो चंपारण एपिसोड था, इट डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस. डिफायंस मीन्स disobedience. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants. ये जो शुरू हुआ था, it was to alleviate means to stop, to do away with the distress of large number of poor peasants. जो बेचारे बहुत सारे जो वो बेचारे किसान थे, उनकी परेशानी को खत्म करने के लिए शुरू हुआ था. This was the typical Gandhi pattern. ये गांधी का typical pattern था. His politics was intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. उनकी जो politics थी, it was intertwined, it was mixed with the practical day-to-day problems. ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी problems के बारे में सोचते हैं. जो लोगों की रोजमर्रा की जो दिक्कतें होती थी, उनकी politics में, उनकी राजनीति में उन चीजों पे तवज्जो दी जाती थी, उन पे ध्यान दिया जाता था. His was not a loyalty to abstractions. It was a loyalty to living human beings. उनकी जो लॉयल्टी थी, उनकी फेथफुलनेस जो थी, वो एब्स्ट्रैक्शंस के लिए नहीं थी, आइडियाज के लिए नहीं थी, बल्कि अपने लोगों, जीते जागते इंसानों के लिए थी. In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his feet and thus make India free. गांधी ने जो कुछ भी किया, वो एक नए भारतीय को मोल्ड करने के लिए, जो कि खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सके और हमारे देश को आजाद कर सके. Early in the Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. शुरुआत में जो चंपारण आंदोलन जो शुरू हुआ था, तो वहां पर एक अंग्रेज था, हाँ, जो चार्ल्स फ्रीर एंड्रूज. ऑलराइट. तो इस ये इंग्लिश पैसिफिस्ट मींस हु बिलीव्स इन पीस, जो शांतिवादी होता है, जो हमेशा शांति में विश्वास करता है, तो वो भी महात्मा का जो है फॉलोवर बन गया था. और वो उनको अपनी ड्यूटी की यात्रा पे जाने से पहले गांधी से विदा लेने आया था. Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help him. जो गांधी के वकील दोस्त थे, उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छा आइडिया होगा अगर एंड्रयूज यहाँ चंपारण में रुककर उनकी मदद करे. Alright, Andrews was willing if Gandhi agreed. अगर गांधी तैयार हो जाए तो एंड्रयूज इच्छुक था, वो बिल्कुल हेल्प करने को तैयार था. बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड. लेकिन गांधी ने इस बात के लिए पूरे जोर से विरोध किया. He said, उन्होंने कहा, you think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side? क्या तुम्हें लगता है कि ये जो हमारी अनइक्वल फाइट है, बिकॉज इसमें कोई भी समानता नहीं है, इसमें अगर हम किसी इंग्लिशमैन को अपनी साइड में लेंगे तो क्या इससे कुछ फायदा होगा? दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट. इससे तुम्हारे जो हार्ट है, जो हृदय है, उसकी कमजोरी का पता चलता है. द कॉज इज जस्ट. हम जिस बात के लिए लड़ रहे हैं वो जस्टिफाइड है, वो न्यायपूर्ण है. एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्व्स टू विन द बैटल. और तुम्हें इस बैटल को जीतने के लिए अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए. यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिशमैन. आपको मिस्टर एंड्रयूज का यूज नहीं करना है ये सोचकर कि वो एक अंग्रेज है तो हमें एक प्रॉप मिल जाएगा, एक सहारा मिल जाएगा. He had read our minds correctly. राजेंद्र प्रसाद comments. राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने हमारे दिमाग को अच्छे से पढ़ लिया था. And we had no reply. और हमारे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वाकई में वो इसलिए एंड्रयूज को अपनी तरफ चाहते थे जिससे कि वो इंग्लिशमैन पर प्रेशर बना सके. लेकिन गांधी ने कहा कि तुम्हें क्यों किसी अंग्रेज की जरूरत है. गांधी in this way taught us a lesson in self-reliance. सेल्फ रिलायंस मीन्स इंडिपेंडेंस, अपने ऊपर भरोसा रखना जिसको कहते हैं. और इस तरह से गांधी ने उनको सेल्फ रिलायंट होने का लेसन दिया. सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर. ये जो आत्मनिर्भरता
सेल्फ रिलायंस और भारतीय स्वतंत्रता और ये जो शेयर क्रॉपर्स को हेल्प करना, ये सब आपस में जुड़े हुए थे, आपस में बने हुए। सो दिस वाज अबाउट इंडिगो।